Hello everyone, welcome to Ways of Daily Current Affair Discussion. My name is Sip Sankar Hazra. With you, the Daily Current Affair Discussion from the Indian Express. So today's topic, before I start today's lesson, it's a information for all of you. So the summer courses for the OPSC, we have started the summer course for the OPSC and UPSC. If somebody needs any kind of information, in the description box, the links is there. There is the number, so you can dial the number for the further detail of the summer courses, including the GS and optional. So as today is the 27th, that is what Aprils, 27th of April, and obviously no doubt the heat waves is really, that is what ransacking the Odisha and other state as well. Is the temperature is now 44 days when I recording the temperatures, when I recording this video on the 27th of April, the temperature 44 degree in Bhubaneswar, and this will continue like the 40, above the 40 degree up to Tuesday. That means up to the second or the first week of May. The temperature is rising as the mercury as well. So we will start the today's newspaper discussion. In the today's newspaper discussion, as the second phase of polling has done, and that witnessed 65% of the turnout, with highest Tripura. Tripura as usual always records one of the highest turnout. वहाँ पे ज़्यादातर लोग यही देखता है. मणिपुर देखो, नॉर्थ ईस्ट में व्हाट हैपेंस इन द नॉर्थ ईस्ट, लेट इट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड मतलब न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द JNK वेयर 71%, Assam 71%, Kerala 70%, Karnataka 69%. See, when it comes to the large state like Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, here the polling is less. Here see, you can see the pollings are here less. But the small state and especially the northeastern state of India, they perform pretty well. Why? Because they are more conscious, they are more educated, they are more responsible. So as this majority here, the majority of the peoples are more like the literacy. When it comes to the literacy, when it comes to the Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, obviously the literacy is less. So that would be one of the probable reason why this kind of turnout is there. Baki rest of the causes might be there because of the heat waves, and the same time heat waves also prevailing, but heat waves in I would say northeastern state is not like that. So that is also could be another cause हो सकता है. नसी अनदर ये यहाँ पे और एक मतलब अच्छा चीज हमें देखना मिलेगा कि EVM गेट द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. EVMs में जो दिक्कत था ना, जो बार बार ऑपोजिशन पार्टी जो लोग बोलते थे कि नहीं EVM खराब है, तो EVM पे जो मतलब वोटिंग होता है वो BJP पे जाता है, इसमें यहाँ पे बहुत सारे खामियाज है, बहुत सारे चैलेंजेस है EVMs में. तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे rejected all the petitions seeking the 100% cross verification of the voters on the EVMs. That means ये जो न्यूज़ ना बहुत बार हमने डिस्कस कर चुके हैं. ये क्या है, देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे के सारे जगह हमारा वीवीपैट नहीं लगा हुआ है. तो ऐसे नहीं कि हर जगह वीवीपैट लगा हुआ है, ठीक है. जो वीवीपैट होता है वो EVM के साथ अटैच होता है, लेकिन वो हर एक EVM पे नहीं होता है. जो सेंसिटिव बूथ होता है, जहां पे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, जहां पे डाउट होता है, जो सेंसिटिव एरियाज होता है, वहां पे ज्यादातर हमेशा ये मतलब वीवीपैट होता है, ठीक है. नाउ सो दैट इज अबाउट क्रॉस वेरिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है. तो वोटर्स वेरीफाई ऑडिट ट्रायल पेपर वीवीपैट सेइंग द सस्पिशियस ऑफ द टैम्परिंग that is what unfounded. It also turned down the plea to review the paper, that is the ballots, revive to पेपर बैलेट्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देखो, जो पहले वोट देते थे ना हम पेपर में, क्या कहते हैं पेपर बैलेट, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना. जो ये जो EVM है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स. तो जो पहले वाला हुआ करते थे, जो मतलब बिफोर दैट EVM दैट यूज्ड टू बी द लाइक व्हाट पेपर बैलेट. तो ये भी पिटिशनर ने ये मांग किया था कि यार वी नीड टू बैक टू द प्रीवियस वन, वो पहला वाला अच्छा था. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मना कर दिया कि नहीं, जो EVM है ये ठीक ठाक है, वीवीपैट भी ठीक ठाक काम करे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है.
तो ये वाला आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ, किसी ने अगर आपको पूछा कि क्या ये डिबेट, तो देखो सुप्रीम कोर्ट, वी नीड टू रेस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो फर्स्ट आवर ड्यूटी, इट्स फर्स्ट ड्यूटी फर्स्ट टू व्हाट, रेस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे करना चाहिए कि हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो भी बोल रहा है वो सही है। बाकी देखो आगे जो भी होगा वो डेवलपमेंट हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे जो अगर हम देखें तो यहाँ पे वैसे कुछ है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। So this is all about. Apart from that, beside the bench suggested that the ECI, the Election Commission of India, to examine the possibilities of the machine counting the VVPAT paper slips, see if it could add a barcode to each the party along with the party symbols. तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, यहाँ पे ये सजेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो अगर ऐसे भी आप कर सकते हो इलेक्शन कमीशन कि एक बार कोड जनरेट कर दे, ठीक है, ये बार कोड अगर वो जनरेट कर लेंगे तो वो भी एक अच्छा मतलब रहेगा कि बार कोड एक अगर वहाँ पे कर ले तो सो दैट क्या होगा ना, तो काउंटिंग वगैरह जो होता है ना वहाँ पे थोड़ा हमारा इजी हो जाए। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सजेशन इज बिन पुट फॉरवर्डेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इलेक्शन कमीशन। उन्होंने ये बोला कि ये मैंडेट है, ये बस इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ये आप कर सकते हो। तो जो सिंबल वगैरह होते हैं वो तो आप सबको पता है। बाकी आपको पता है कि जो ईवीएम है ना, ईवीएम एंड वीवीपैट, what happens, only like 5 VVPAT, that is VVPATs are checked, not all the VVPATs are checked, okay, in an that is the but constituency, in an constituency. So that is all about, we have talked it many times। हमने ये भी बोला है कि बहुत बार मैंने ये सारी चीज को डिस्कस कर रखा हूँ। तो अभी जो डेवलपमेंट ये है कि जो वीवीपैट ईवीएम इनको ग्रीन सिग्नल मिल गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक सजेशन कि देखो आप यहाँ पे ऐसे करो, कोई बार कोडिंग कर दो ताकि वीवीपैट जो है ना वहां पे हमें पता चल जाए कि हाँ ये वाला ये इसके लिए। तो ये सजेशन दिया गया है, ठीक है। तो चलो फिर आगे, जब आगे चलते हैं ऑब्वियसली आपको तो पता है कि जो हीट वेव्स बहुत चल रहा है, आईएमडी ने बोल के भी रखा है कि 4 से 5 डिग्री का टेम्परेचर मतलब 40 डिग्री, तो मेजोरिटी पार्ट्स क्या होगा उड़ीसा में 40 डिग्री। तो भुवनेश्वर मतलब वन वुड बी द हॉटेस्ट, लाइक रिकॉर्डेड 44.6 डिग्री सेल्सियस अनुगुल, द हाईएस्ट 44.6 डिग्री। तो टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे हाईकोर्ट वॉइस कंसर्न ऑफ द पोक्सो एक्ट। तो देखो और एक न्यूज यहाँ पे है कि पोक्सो एक्ट क्या है। सो दिस पोक्सो एक्ट वाज देयर विथ रिगार्डिंग द व्हाट, दैट इज द जो वायलेशन ऑफ व्हाट, दैट इज द चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, सो ओडिशा हाईकोर्ट ने बोला है कि पोक्सो एक्ट के अंदर, पोक्सो एक्ट क्या होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल असल्ट, दैट इज बट ऑफेंसेस फॉर द चिल्ड्रन। तो इफ तो मतलब इसका क्या होता है, इफ एनी चाइल्ड दैट गॉट सेक्सुअली हरास्ड, क्या वो मतलब ऐसे कुछ भी हो गया उनके साथ ऑफेंसेस वगैरह, तो वहां पे केस दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईकोर्ट, उड़ीसा हाईकोर्ट ने बोला कि देखो बहुत सारे चीज मतलब जगह ऐसे होता है ना, उसका मतलब जो कुछ लोग बेनिफिट उठा लेते हैं कि हाँ ये चीज नहीं आ रहे, पॉक्सो अंडर नहीं आते, कुछ केसेस जबरदस्ती उसको क्या होता है एफआईआर होता है, पॉक्सो एक्ट के अंदर होता है, ताकि मिसयूज हो रहा है, ठीक है। सोचो कोई एक चाइल्ड है ABC उसका नाम, ठीक है, उसका क्या हो गया, कुछ उसके साथ हुआ है क्या, ऐसे कुछ मतलब उसके साथ हुआ है जो नहीं होना था, तो वो सिविल केस था, ठीक है, वो एक सिविल केस था। लेकिन उसको जो एफआईआर दर्ज किया जाता है ना वो पॉक्सो एक्ट के अंदर हो जाता है। ये एक सिविल केस था, लेकिन एक्ट को किसके अंदर आ गया, पॉक्सो एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्ट का दैट मीन्स यहाँ पे क्या, जैसे कि मतलब आपको भी पता होता है कि many times when the women's they file a case against the main counterpart by alleging the harassment, though she was not मतलब affected by that। तो ऐसे होता है कि फॉल्स एलिगेशन होता है, तो बहुत सारे ऐसी चीजें भी आ रहा है। तो इसको आप केस स्टडीज लिख सकते हो, ठीक है। एज पर द एक्ट, एनी चाइल्ड बिलो, दैट इज ए चाइल्ड क्या होता है, बिलो द 18 ईयर्स, ठीक है, कैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट फॉर द सेक्सुअल रिलेशन। तो as per the act, a child below what 18 is that is incapable, तो उनको वहां कहते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो कुछ कोई भी अगर बच्चा मतलब 18 साल के अंडर, देखो ये जो डेफिनेशन होता है ना चाइल्ड का डेफिनेशन मतलब हमेशा डिफर करता है। जैसे कि लेबर एक्ट के अनुसार एक चाइल्ड का डेफिनेशन अलग होता है, तो यहाँ पे पॉक्सो एक्ट के अनुसार के क्या होता है कि कोई भी बच्चा अगर 18 साल के नीचे जो भी आ रहा है उनको सब चाइल्ड के डेफिनेशन में आ जाएंगे। उनका मतलब
इफ एनीवन दैट इज उसके साथ कुछ भी सेक्सुअल एक्टिविटीज होता है तो उसको ऑफेंसिव माना जाएगा। नहीं हो, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये मेजोरिटी ये होता है। तो इसलिए दैट मीन्स जो छेड़छाड़ होता है उनके साथ ऐसे सारे केसेस को रोकने लिए, मतलब टू रिड्यूस दैट दिस काइंड ऑफ केसेस वेयर the childs are really they're facing such kind of cases, and that is why to reduce that sexual harassment of the childs, this POCSO Act was that was brought. Okay, now चलो फिर आगे देखते हैं क्या है। तो टेम्परेचर तो बहुत आगे बढ़ा, चलो फिर हमारे एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। व्हाट विल हैपेंस टू द एडिटोरियल पेज, बहुत बढ़िया चीज़ है एडिटोरियल पेज में। आज का जो न्यूज़ उसको भी थोड़ा मैं समझाऊंगा कि भारतमाला, यहाँ पे देखो फार्मर सिकिंग्स डाइवर्जन ऑफ द कोस्टल हाईवे अंडर द भारतमाला। तो फार्मर्स मतलब डाइवर्जन ऑफ द कोस्टल हाईवे अंडर द भारतमाला के प्रेजेंट, वो जो लैंड है ना उसको डाइवर्जन के लिए, मतलब उनका कहना है कि हाँ हमें रिटर्न द पॉसिबिलिटीज ऑफ लूजिंग देयर, वो जो लैंड है को भारतमाला जो कोस्टल हाईवे होगा वहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स दे सिक्स द डाइवर्जन ऑफ। तो जो भारतमाला आपको सबको भी पता है कि द कोस्टल हाईवे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द गंजाम, दैट विल वट मूव इन द कोस्टल रीजन लाइक through the what Jagatsinghpur, through the Kendrapada, through the Puri, the coastal area. So here in the coastal area, the highway will pass in this coastal area. Okay. तो यहाँ पे जो कोस्टल हाईवे होगा बहुत सारा लैंड क्या हो जाएगा, दैट विल कम अंडर, सो लैंड डाइवर्जन होगा ही होगा। तो वैसे ये वाला केस बोल रहे कि जैसे कि पाइका रिवर रादर दैन द वट देयर फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड दैट वुड बी डाइवर्टेड। तो फार्मर्स दे आर हैविंग वट एप्रीहेंशन कि मेनी ऑफ द लैंड्स दैट वुड बी डाइवर्टेड, वो जो लैंड है ना वो डाइवर्टेड हो जाए। कौन करेगा? NHAI। ऑब्वियसली उसको तब मिलेगा ना जब लोगों का कंसेंट मिलेगा, तब तो डाइवर्ट होगा। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती ले लेंगे फार्मर से लैंड, वैसे नहीं होगा। ठीक है, वो तो पहले कंसल्ट होगा, बहुत सारे कंपनसेशन दिया जाएगा, फिर होगा। तो कंपनसेशन दे विल आल्सो गेट द कंसेंट्रेशन कंसेंट। ठीक है, चलो फिर नाउ वी विल कम्स टू द एडिटोरियल पार्ट, द मोस्ट अवेटेड पार्ट। तो एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस टू द एडिटोरियल पार्ट। चलो एक चीज पहला ये वाला है कि यूएस स्टैगफ्लेशन इन यूएसए। व्हेन आई से स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है? स्टैगफ्लेशन मतलब योर इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा नहीं है, इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। तो ऐसी सिचुएशन पे इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है। देखो इकोनॉमिक अच्छा परफॉर्म नहीं करे, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि यूएसए में अगर स्टैगफ्लेशन चला और चलता रहे तो इसका जो इम्पैक्ट क्या होगा ना, दैट विल ऑन इंडिया। सो व्हाट द इन्वेस्टर विल डेफिनेटली कम्स टू इंडिया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द यूएस मार्केट, दे विल ट्राई टू शिफ्ट टू इंडिया। वो लोग ना इंडिया पे आएंगे, भागेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये बोल रहे हैं, ऑथर का कहना है। Now why? See, when US market is not performing well, when the world's largest economy is not performing well, the investor would not get profit. What will happen? The investor would not get the profit. As investors are always economic men. When any investors is not getting profit from any economy, then they will what fast and the quick rate they will switch that economy to move another economy. So that is why the economics what they are expecting that sort of impact may happens. Okay, so that means what your economy is having high inflation, so there is what recession, one type of recession, so that will definitely push the investors towards the India. So that is all about. So that is why the Indian market will have the positive impact. A high inflation scenario and for the long terms and the long rate of narratives will obviously that will impact the US economy and the investor will move towards India. So that is the speculation is there. So there is a speculation, and obviously India is one of the brightest spot for the investor to invest in Indian economy because the economy is performing well. So that is all about the scenario from this particulars what articles. Okay, now when it comes to this particular one, what exactly happens to the Kerala LG's masses. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ
कि रॉन्ग मैसेज इन एलजी's केरला चॉज दैट इज बट पारलेस। तो यहाँ पे इशू क्या है देखो, नाउ VK सक्सेना द LG that is what LG's the Delhi Lieutenant Governor VK सक्सेना। ओके, तो ये क्या है, VK सक्सेना द LG ऑफ दिल्ली recently visited a Christian church in Kerala and that was linked। तो उसको बाकी जो पार्टीज है ना, ऑपोजिशन पार्टीज है, उन्होंने बोला कि देखो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कैंपेनिंग बहुत मतलब चरम स्टेज पे आ गए, इसलिए शायद दिल्ली एलजी ने आया है कुछ बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। जो चर्चेस वगैरह है वहाँ पे घूमेंगे, वहाँ पे फिर वोट मांगेंगे, मतलब सपोर्ट मांगेंगे चर्च मतलब रिलीजियस एरिया से और इंस्टीट्यूशन से। ये एलिगेशन कुछ लोगों ने बोला, लेकिन जैसे कांग्रेस ने बोला, अदर पार्टीज ने बोला, तो उसको लेके मतलब बहुत सारे बयानबाजी हुआ। तो बीजेपी ने कहा कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, ये जो एलजी VK सक्सेना उन्होंने चर्च पे जाया था वो प्राइवेट इनविटेशन था, दैट वाज नॉट ऑफिशियल विजिट। तो वो क्या था, ऑफिशियल मतलब ऐसा है, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लिंकेज विद द इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए नहीं था। वो तो ऐसे गए थे ताकि जो चर्चेस है ना, उन्होंने बुलाया था एक मीटिंग पे, एक मतलब एक गुड विल गेस्टर्स पे, ऐसे ही वो गया था। उसको किसी ने मतलब झूठा बोल दिया कि देखो एलजी आ गए इधर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे कुछ भी बोल दिया लोगों ने, तो उसको लेके हल्ला मचा दिया सारे लोगों ने। तो ऐसे मतलब, और एलजी ने खुद ने उन्होंने भी बोला और उनके ऑफिस के तरफ से भी बाकी मतलब क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने कि ऐसे कुछ नहीं है, वो बेस में आया था ताकि कुछ चर्चेस में फंक्शन था, वो फंक्शन अटेंड करने आया था। So there was a function in the church and it was no intention behind the visit of the LG for the what to disturb the election campaigns or to get the garner of the supports for the BJP. That was no sorts of tactics, neither that was the objective of the visiting of Delhi LG to the Kerala recently. So that was all about happenings in this particular editorial, there's what articles, but I think there is nothing left for the exam. So we will left it, now moves to the another। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा हुआ है, किसके द्वारा, KM चंद्रशेखर, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी एंड द ऑथर ऑफ एज गुड एज माई वर्ड, ये मेमोरी। तो चलो यहाँ पे क्या होता है, नो सी, ये जो है ना कैबिनेट सेक्रेटरी थे, इनके ऊपर में यहाँ का पूरा मतलब समरी, आई विल ट्राई टू समराइज दिस large articles. This article does not have any, you can write some of the quotation, like some of the good quote is been spelled out there, is been written there. So I would better suggest कि only we need to go through these articles. This is his personal view। देखो ये उनका खुद का है, वो कोई ऑफिशियल नहीं है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया, ये कांग्रेस का ये बोल दिया, आम आदमी पार्टी ने बोल दिया और वगैरह वगैरह, कुछ ये कुछ नहीं, पर्सनल व्यूज है। तो पता नहीं ये पर्सनल व्यूज को दिया गया LK आडवाणी के ऊपर। ये जो आर्टिकल्स है LK आडवाणी के ऊपर कि वो क्या चाहते थे, व्हाट वाज हिज विजन ऑफ इंडिया। नाउ दिस आर्टिकल्स विल कंप्लीटली टॉक अबाउट द कार फेस्टिवल ऑफ LK आडवाणी, दैट द रथ यात्रा फेस्टिवल फ्रॉम द सोमनाथ टू अयोध्या। इनका जो वो जो सपना था कि राम मंदिर में आई विल बिल्ड द राम मंदिर, एंड हिज विजन वाज आल्सो देयर। तो उनका विजन क्या था वो देखो, इनका कहना है कि माई नेवर हु एनविजन्ड अनदर इंडिया। इनका कहना है मतलब क्या है कि ये जब दिल्ली में थे, इनके जब मतलब ही वाज द सेक्रेटरी व्हेन हिज क्वार्टर, हिज बैंगलोर वाज क्लोज टू द आडवाणी बैंगलोर। सो द बोथ बैंगलोर्स वर वेरी प्रेटी क्लोज। तो जब भी कभी ऐसे होता है, जब कोई भी मतलब ऐसे फंक्शन होता है आडवाणी के घर में, तो ये चले जाते हैं इनविटेशन पे, उनको मिल जाता है क्योंकि दोनों नेबर है, ठीक है। भला ये बहुत छोटे हैं उम्र में, लगभग मतलब आप तो पता है ना LK आडवाणी बहुत बड़े मतलब 93-94 ईयर्स ओल्ड मैन, तो जैसे कि पिता के समान है इनका। तो ये क्या करते हैं कभी कभी मतलब जब इनविटेशन आता है, तो जैसे कि ये वाला घर ये इन घर में ये रहते थे और LK आडवाणी जी यहाँ पे रहते। तो इनका कहना है कि जब मैं दिल्ली में था तो आई नो हिम वेरी क्लोजली बिकॉज बोथ आवर रेजिडेंट्स वेर क्लोज टू लाइक
वन इज अदर। ओके, तो दैट इज वाई ये बोलता है, वही बोल रहे हैं कि हाँ मैं कभी कभी ओकेजन में, फेस्टिवल ओकेजन में मैं भी जाता था गिफ्ट वगैरह लेके। वो भी बोलते थे हमें कि लास्ट टाइम उन्होंने मेरे को बोला कि उन्होंने बोला जब मैं मतलब जाता था कि उन्होंने एक बुक दिया था मेरे को, कि उन्होंने लास्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम ही गिव मी अ बुक, माई कंट्री माई लाइफ। तो उनका किताब का नाम क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। अगर इसको आप मतलब लिख सकते हो, उसमें ये मतलब अलके आडवाणी जी ने चंद्रशेखर को ये बुक दिया कि देखो आप मतलब जहाँ पे रहो खुश रहो स्वस्थ रहो। तो ये बोल के बुक दे दिया उनको। एंड ही सेड that I only wish you to say wherever you are, be happy, be healthy, इन्होंने ये बोला। तो फिर उन्होंने मतलब इनका क्या है, चंद्रशेखर का कहना है कि मतलब ही वांट्स टू से दैट आई नो हिम पर्सनली व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर। उसको इंडिया कैसे दिखता था, वो इंडिया को कैसे दिखना चाहता था। तो ये स्टोरी अब वो बोलते हैं कि जब 1984 में राजीव गांधी का जो इलेक्शन जीते थे, वो जो इलेक्शन जीते थे उस समय, दैट वाज लाइक ए गांधी इलेक्ट्रल सुनामी एंड द बीजेपी वाज कंप्लीटली स्वेप्ट अवे। There was nobody to construct the BJP, and LK Advani was left with the torn party, and everybody now gave the responsibility to LK Advani to rebuild the BJP. And वो एक एक ईंट जोड़ के he rebuilt the brick by brick the BJP को उन्होंने एक एक ईंट रख के बनाया। उन्होंने रथ यात्रा स्टार्ट किया सोमनाथ से लेके अयोध्या। एंड ही उन्हें उस समय बोला था कि हाँ वी विल बिल्ड द राम, मतलब राम श्री राम का जो जन्मभूमि है वहां पे टेम्पल करके रखेंगे। एंड दैट वाज द मैनिफेस्टो। जहाँ पे भी मतलब अभी अभी आपको पता है कि 2000 हमने क्या है जो 24 में देखा कि हाँ ठीक है राम टेम्पल भी बन गया, तो टेम्पल भी बन गया तो ठीक है। ये जो टेम्पल यात्रा था, ये द रथ यात्रा, दैट वाज द पॉइंट्स फॉर द डिबेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल। बट हाँ, Advani believes in genuine secularism. इनका कहना है कि though he started that car festival for the construction of the Ram temples and building of the BJP, okay, but उनका कहना था कि but Advani always he was looking for a secular country. उनका secularism का definition क्या था? वो secular country हमेशा चाहता था। कैसे? उनका massive parts of in their life, वो he separated from the religion. So genuine, that is the secularism, but he does not accept the Indian people who can separate it from them. He does not accept that Indian people can be separated from the religion, which play a massive part in their life. उनका ये मानना था एलके आडवाणी कि आप कभी भी इंडियन को रिलीजन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकुलर कंट्री अच्छा है कि हाँ वी द नेशन डज नॉट हैव पर्टिकुलर आप इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि मतलब स्टेट वुड नॉट पैट्रोनाइज एनी डेफिनेट रिलीजन। वो एलके आडवाणी को भी पता था, लेकिन आडवाणी का कहना था कि भाई आप इंडिया में ना लोगों को रिलीजन से दूर नहीं रह सकते। वो जो डेली लाइफ है ना वो अटैच है, दे आर वेरी अटैच। उसके बाद क्या हुआ, जो रथ यात्रा उन्होंने किया था, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी पे ज्वाइन कर दिया। और उनका रथ यात्रा कहाँ पे स्टॉप हुआ था? बिहार में। ठीक है, बिहार, इन बिहार। Until it was stopped in Bihar taught him a lesson that no matter how our constitution is interpreted, religion resides in the deep in the psyche. उन्होंने ये चीज सीखा था उस दिन कि whatever you may do it, but the religion will remains in the psyche of the people of India. Like the Prime Minister Modi ji said the few days back, the modernity will remains on the body of the country and the religions and the belief will be in the soul. तो ये जो कोटेशन, so that will defines, so ये जो कोटेशन था that was awesome कोटेशन। तो ऐसे कोटेशन भी आप लिख सकते हैं ऐसे में लाइकवाइज। तो जैसे कि आपको ये वाला उनको पता चल गया, ठीक है। तो जैसे कि रिकॉलिंग व्हाट स्वामी की विवेकानंद ने भी बोला था, he said about the place of religion in the Indian's national life, he realized that if this religiosity were to be channelized into a positive direction, it could unleash a tremendous energy for the nation construction. स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था
कि इफ ये रिलीजन को ना लोग नहीं छोड़ सकते, बस एक चीज हम कर सकते, क्या सकते, रिलीजन को ऐसे यूज किया जाए पॉजिटिवली, अगर उसको चैनलाइज किया जाए, और वो जो एनर्जी रिलीज होगा ना वो नेशन बिल्डिंग पे बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कब, 1898, और आपको सबको पता है कि शिकागो पे वो गए थे, फिर वापस आए। ठीक है, he wanted to lead mankind to a place where there is neither Veda nor Bible nor Quran nor Veda, यह पे कुछ नहीं होगा, but to harmonize among them, ये नहीं होगा लेकिन हार्मोनी एस्टैब्लिश होगा। तो ये था उनका टारगेट, कौन, किसका, स्वामी विवेकानंद। सो मैनकाइंड ought to be what told the religion that they are what varied expression of the religious। तो ये वाला आडवाणी said he had discussed with the Hindu domination questions with the aim, that is what Golwalkar, the distance past, told him the country would have accommodated a diversity and could never be a theocracy। तो सेकुलरिज्म आडवाणी दो ही स्टार्टेड द रथ था, बट ही वांटेड सेकुलरिज्म, वो भी चाहते थे सेकुलरिज्म, ये उनको कहना था। ठीक है, फिर डिवाइड, उनका कहना है अथर का कि देखो जो रिलीजियन होता है ना उसको नेशन बिल्डिंग पे हेल्प करेंगे, ताकि नेशन खत्म करने के नहीं, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए। नॉर इज रिलीजन टू बी यूज्ड फॉर द पॉलिटिकल सपरेशन, फॉर द ऑपरेशन, और टू रिटर्न टू द कॉलोनियल पैराडाइम्स डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल के लिए नहीं है, ठीक है, ये प्रॉस्पेरिटी के लिए होना चाहिए। सो रिलीजन मस्ट नॉट बी what used for the electoral benefit, for the what political benefit, ऐसे नहीं होना चाहिए था इनका ऑथर का ये। ठीक है, ये किसने कहा, ये भी कहा था एल के आडवाणी ने। सो जो भी हो, एल के आडवाणी गया, फिर वो 2014 में जब इलेक्शन जीता, उन्होंने कहा एल के आडवाणी कि देखो मैंने, आई विल ऑलवेज बी प्राउड टू बी ए स्टूडेंट्स, एंड जब मैंने आरएसएस में जो सीखा, जो डिसिप्लिन, जो संस्था के अंदर जो मैंने पर्सनालिटी डेवलप हुआ, जो भी हुआ है, वो मेरे लिए हमेशा, आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर द आरएसएस, द क्वालिटीज, द डिसिप्लिन, द ऑनेस्टी, द आइडियलिज्म, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दैट वुड बी ऑलवेज रिमेन इन माय हार्ट, एंड आई वुड बी ऑलवेज, आई विल हैव द ग्रेटिट्यूड फॉर द आरएसएस, दैट द आडवाणी सेड अकॉर्डिंग टू Chandrasekhar. But Chandrasekhar again is saying in the next para that when it आफ्टर 1990s में जब ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हुआ था, वाजपेयी जी ने जब, मतलब आपको सबको पता, वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर था, वाजपेयी जी थे उस समय, ये डेप्यूटी मतलब क्या था, पीएम भी थे, तो मतलब ये था। तो तभी हमें देखने ये मिला कि दैट टाइम ही वाज हैविंग सिग्निफिकेंस, बट आफ्टर 2014 इलेक्शन के बाद आडवाणी हैज लॉस्ट द सिग्निफिकेंस। द मैन टू हुम ही सेव्ड इन 2002 गुजरात रायत, उन्होंने इनके साथ वट विश्वासघातकता किया है। ये चंद्रशेखर बोल रहे हैं कि देखो जिन्होंने मोदी जी को सेव किया था, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोल रहे हैं कि देखो मोदी जी को जब गुजरात राइट हुआ था इन्होंने बचाया था, और एल के आडवाणी आज देखो वो अदारकारी हो गया, उनका आज कोई वैल्यू नहीं है बीजेपी में, एक आदमी यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर का चले। तो ये वाला पूरा आर्टिकल समा था, ये हमने देख लिया, थोड़ा बड़ा आर्टिकल था। बाकी जो सेकेंड फेज होगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन। बट हाँ, ये एक चीज, आई नीड लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड दैट विल ऑलवेज कीप मी मोटिवेटिंग टू मेक मोर वीडियोस। अगर आपको ये लगता है कि मतलब किसी का कुछ भी सजेशन हो ना कि हाँ हाउ टू इम्प्रूव द मोर डिस्कशन हेल्थियर कैसे हो सकता है, कि यू आप freely you can give the suggestion in the comment box. I will definitely go through your comment and reply you. Thank you everyone. Have a good day to all.